Hi, good morning, everyone. सबको सुप्रभात। Okay, we are going to continue with whatever we've been learning about the gift of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के वरदानों को लेकर जो भी हम सीख रहे थे उसको लेकर लगातार हमारे शिक्षा को जारी रखेंगे। Okay, so yesterday we looked at some very interesting things about the Holy Spirit. और कल हम लोगों ने बहुत से रोचक बातों को पवित्र आत्मा के बारे में देखा That we learned about the baptism of the Holy Spirit, और हम लोगों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में सीखा। and we also looked at 5 instances in the book of Acts about the baptism of the Holy Spirit. और प्रेरितों के काम की किताब में हम लोगों ने 5 घटनाओं को देखा जहां पे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। And we see what was common in all of those 5 instances. और हम देखते थे, हम यह जान पाए कि उन 5 घटनाओं में सबसे जो सामान्य बात थी वो क्या थी। And we also learned about some of the differences between those 5 instances. और उनके बीच में कुछ जो अलग बात थी उसको भी हम लोगों ने देखा। Okay, and then we were answering some questions at the end of the day, और end of the session, और सत्र के अंत में हम लोग कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे and that's where we ended last class. और यही पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा। Okay, so since we don't have the notes, we have the notes here presented on screen. और जैसा कि हमारे पास हमारी पुस्तिकाएं नहीं हैं तो हमारा जो नोट्स है इस पर्दे पर दिखाया जाएगा। Okay, so you can either follow it here or you can write down whatever points we are sharing. तो आप इसको देख सकते हैं या और अगर आप चाहते हैं लिखें तो हमारे सारे बातों को जो आप चाहते हैं लिखना उसे लिख भी सकते हैं। Right, so we are actually in chapter 3. और वास्तविकता में अभी हम अध्याय and 3 में हैं towards the end of chapter 3, और अध्याय 3 के अंतिम भाग में हम and we are looking at some of the questions, और हम कुछ प्रश्नों को अभी देख रहे हैं। some of the questions about the baptism of the Holy Spirit. और कुछ प्रश्न जो बपतिस्मा के पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में है। Okay, so one of the questions we asked yesterday was, do I have to wait? Do I have to tarry in order to be filled with the Holy Spirit? तो हमने कल एक प्रश्न पूछा था कि क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के लिए। Right, you remember? That was आप the question. Okay, यही जो प्रश्न था कल। yeah, so what is the answer? What do you think is the answer for that question? तो आप क्या सोचते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए? You don't have to wait to be filled with the Holy Spirit, but the Lord Jesus said, you wait in Jerusalem. अगर आप कहें इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में कि मेरा इंतजार करो। And so the disciples were waiting, तो उनके चेले भी इंतजार कर रहे थे and they were filled with the Holy Spirit. और वे भी पवित्र आत्मा से भर गए। So should we also wait like that? तो क्या हमें भी ऐसे ही इंतजार करना है? No. Okay, if you're saying no, then you should give an answer. Explain it. Why we should not wait? We don't have to wait. तो अगर आप नहीं कह रहे हैं तो इसका एक आप उत्तर दीजिए कि क्यों नहीं कह रहे हैं आप, क्यों इंतजार करना नहीं चाहिए। Jesus said that to the disciples, because he said that when I'll go to Father, I'll send you Holy Spirit. But now we can ask baptism of Holy Spirit anytime because we will be given. Okay. But he asked them to wait. So what is different now? For us, what is different from that initial instruction? तो जो शुरुआती निर्देश था उसमें तो उन्हें कहा कि इंतजार करो, तो हमें इंतजार करना क्यों है? Okay, anyone else? और कोई? हाँ, इंतजार करना चाहिए. Okay. Why? क्योंकि as the Lord Jesus gave the instruction. ठीक है. और कुछ? So they were preparing their hearts. Okay. तो भाई कह रहे हैं कि वे अपने हृदयों को तैयार कर रहे थे। Okay, so we looked at 5 instances, right? Last time.
कल हम लोगों ने 5 घटनाओं को देखा है ना। Okay. So what about the second time? तो दूसरी बार था, उसके बारे में क्या? The second instance when Peter and John went to Samaria, जो घटना था जहां पे पतरस और यूहन्ना समरिया को गया था, they went, laid hands and prayed, वो गए, उन्होंने हाथ रखा और प्रार्थना किया, and they were baptized in the Holy Spirit. और वे भी बपतिस्मा पा चुके थे पवित्र आत्मा की। So were they also waiting? No, they were not waiting. तो क्या वे भी इंतजार कर रहे थे? नहीं, वे इंतजार नहीं कर रहे थे। So what do you say about that? तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? They believed. So the disciples also believed, right? Correct, correct, correct. But in the second time, when they went to Samaria, they believed in Jesus. They became disciples. Peter and John, yes. Then what about Cornelius' house? They didn't lay hands. Peter went there. Peter was preaching, but he didn't lay hands. Right? They were still filled with the Holy Spirit. है ना? तो भाई कह रहे थे कि देखिए, उन्होंने अपेक्षा की थी विश्वास के लिए कि वहां पवित्र आत्मा काम करेगा, इसलिए वो वहां पे गए और उन्होंने प्रार्थना किया, और कुरनेलियुस के घर में भी पतरस ने हाथ रखा। Correct. So the question is, should we wait or should we not wait? तो इन सब बातों को लेकर जो प्रश्न है कि क्या हमको इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Let's say you're teaching someone about the baptism of the Holy Spirit. तो अगर आप किसी को सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, So what will you tell them? You wait for 10 days, you wait for a week, क्या आप उनको क्या कहेंगे कि आप 10 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए इंतजार कीजिए, ऐसा कहेंगे? or will you tell them, Holy Spirit can fill you right now? और ये आप कहेंगे कि नहीं नहीं, पवित्र आत्मा तो अभी आपको भर देगी। Okay, so this is, the reason why Jesus asked the disciples to wait is this. तो क्यों यीशु मसीह ने चेलों को इंतजार करने के लिए कहा, वह यह है। Okay, the Lord Jesus, he was crucified on during the feast of the Passover. और जो फसह का पर्व था, उसी समय उसी समय के दौरान यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। Right? He rose again during the feast of the first fruits. और जो पहले फल का जो पर्व होता है, उस समय उसका वो पुनरुत्थान हुआ उसका। Right? These are all the Jewish feasts. और ये सब यहूदी त्योहार हैं, Yeah, पर्व हैं, special days for the Jewish people. और यहूदियों का सबसे विशेष दिन माना जाता है इन दिनों को। And he poured out the Holy Spirit on the 50th day after the feast of first fruits. और उसने अपने पवित्र आत्मा को 50वें दिन के बाद वह उड़ेला जो पहले फल का पर्व था। On the day of the Pentecost. और वह पेंतीकुस्त के दिन को था। Right? So when the first time when the disciples received the baptism of the Holy Spirit, when the Holy Spirit was poured out, it was on the day of the Pentecost. और जो पहली घटना देखते हैं, जो पहली बार पवित्र आत्मा को दिया गया था, वह पेंतीकुस्त के दिन दिया गया था। So God wanted to pour out his Holy Spirit on the day of Pentecost. So परमेश्वर चाहते थे कि वो अपना पवित्र आत्मा वह उड़ेलेंगे उस पेंतीकुस्त के दिन। So in his plan and purpose, people were waiting and they were filled on that particular day. और उसके योजना और उसके उद्देश्य में लोग इंतजार कर रहे थे और वे उन दिन भर गए। Right? So that is why he asked them to wait. तो इसीलिए उनको कहा गया था कि इंतजार कर, प्रतीक्षा कर। But if you look at the other 4 times when people were baptized, और अगर आप देखेंगे और 4 घटनाओं को जहां पे लोगों को बपतिस्मा मिला, they were just filled. They believed and they were filled in the Holy Spirit. तो वे बस भर गए, वो उन्हें विश्वास किया और वे पवित्र आत्मा से भर गए। Right? So that applies for us today. तो वही आज हमारे ऊपर भी लागू होता है। We can never be holy enough
to receive baptism of the Holy Spirit. और हम कभी भी उपयुक्त अपने आप को हम पवित्र नहीं ठहरा सकते पवित्र आत्मा को पाने के लिए। Sometimes we think, no, I need to be holy in order to receive the Holy Spirit. तो कभी कभी हम सोचते हैं कि मुझे पवित्र होने की आवश्यकता है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। Sometimes we think I need to be knowledgeable, I need to know more of the word, and only then I'll be baptized with the Holy Spirit. तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें काफी ज्ञानवान होना चाहिए, हमको ज्यादा वचन की समझ होनी चाहिए, तब जाकर हमको पवित्र आत्मा मिलेगी। Or we might think, you need to be mature enough, experienced enough in order to be baptized in the Holy Spirit. और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हमको काफी ज्यादा परिपक्व होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। No, none of that is required. नहीं, इसमें से किसी बात की आवश्यकता Because नहीं Jesus है। baptized us in the Holy Spirit. और क्योंकि यीशु मसीह ने हमको बपतिस्मा दिया पवित्र आत्मा से, When we have faith in Him जब हम उस पर विश्वास लाते हैं and when we desire the baptism of the Holy Spirit. और जब हम इच्छा रखते हैं पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने की, Okay, so there's no need to wait. तो इसलिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। Okay, then another question that we might have और दूसरा प्रश्न जो हो सकता है आपको, is speaking in tongues the evidence of the baptism of the Holy Spirit? तो क्या अन्य भाषा बोलना क्या ये गवाही है कि हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है? Right? When somebody prays in tongues, is that the evidence of the baptism of the Holy Spirit? जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो क्या यह संकेत हो जाता है कि यह व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका I है? think we had one of those questions yesterday. और हमें कल इस प्रकार के प्रश्न हमें इससे Okay. प्राप्त हुए थे। When we look at all these 5 times in the book of Acts, और जब हम ये सारे 5 घटनाओं को प्रेरितों के काम के पुस्तक में देखते हैं, we see that there were direct references to praying in tongues every time the baptism of the Holy Spirit happened. और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीधा लगाव था उस बात को लेकर के जहाँ पर उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और अन्य भाषाओं को बोला। Right? And twice there were indirect references, और दूसरे समय थोड़ी घुमा फिरा के, like when it came to Saul and when it came to the baptism in Samaria. और जब ये पौलुस के बारे में आया और या समरिया में बपतिस्मा के बारे में आया, उस समय की बात। Right? So we can conclude that yes, when there is the baptism of the Holy Spirit, the most common occurrence is the praying in tongues, speaking in tongues. तो हम इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम प्राप्त करते हैं तो जो सामान्य बात होती है वो होती है अन्य भाषा में बात करना। But having said that, there could be other manifestations of the Holy Spirit also. उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ अन्य प्रकटीकरण पवित्र आत्मा के हो सकते हैं, Which means that the Holy Spirit can manifest in the other gifts also. इसका मतलब होता है कि पवित्र आत्मा कुछ अन्य वरदानों को देकर भी वह अपने आप को चिन्हित या दिखा सकता है। Like for example, in the last instance that we studied yesterday in the chapter 19 of the book of Acts, और जो उदाहरण के रूप में कल हम लोगों ने अध्याय 19 में देखा था पवित्रों के काम में, we see that the disciples who were there, they prayed in tongues, but they also prophesied. हम ये देखते हैं कि जो चेले थे उन्होंने अन्य भाषा में बात की, उसके साथ साथ भविष्यवाणियां भी की। Yeah, we saw that, right? हम उसको कल देखे थे, है ना? So which means that yes, there could be other manifestations of the Holy Spirit also. तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, कुछ और चिन्ह प्रकटीकरण But- हो सकता है पवित्र आत्मा का। But we can expect, desire, and also teach others to expect and desire the gift of tongues. तो हम भी अपेक्षा कर सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं कि हमें वह अन्य भाषा का वरदान प्राप्त हो और दूसरों को भी अपेक्षा दे सकते हैं और सिखा सकते हैं कि उनको भी अन्य भाषा का वरदान प्राप्त हो। So then the question, why is this tongues? तो फिर प्रश्न आता है कि क्यों अन्य भाषा, Why can't God do it any other way? क्यों परमेश्वर किसी अन्य तरीके से इसे नहीं करते? But when, if you look at the gift of tongues, और जब हम अन्य भाषा के वरदानों को देखते हैं, it's something that goes beyond our human understanding. तो कुछ ऐसी बात को हम देखते हैं जो हमारे मानवीय या मनुष्य के समझने की क्षमता से परे है। It goes beyond our reasoning. और हमारी जो तर्क करने की जो शक्ति होती है उससे भी परे है। And we need to simply trust God and His wisdom. और हमको साधारण रूप से परमेश्वर पर अपना विश्वास करना, उसके ज्ञान पर अपना भरोसा रखना है। And this happens for all the gifts of the Spirit also. और यह सारे वरदानों जो आत्मा के हैं उसके साथ भी होता है। We need to trust Him. हमको उस पर विश्वास करना है, We need to be totally dependent on Him. हमको पूर्ण रूप से उस पर निर्भर होना है। And therefore, God has instituted these gifts. और इसीलिए परमेश्वर ने इस वरदान का संस्थापित किया है।
so that we can be totally dependent and have faith in him. कि हम पूर्ण रूप से उन पर निर्भर हो जाएं और उस पर भरोसा रखें। Okay. Okay. Another question. और प्रश्न है, Do we need to lay hands on someone and pray for them to be baptized in the Holy Spirit? तो क्या हम किसी पर हाथ रख के प्रार्थना करें कि उनको भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले? What is your answer? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? If the Holy Spirit? अगर Okay. पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर रहा है, अगुवाई करे, तभी। तो भाई ने ऐसा कहा। Okay. So the answer is this. Yes, you can lay hands and pray, तो देखिए, उत्तर यह है, हाँ, आप हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं, but you don't have to lay hands also. आपको हाथ रखने की आवश्यकता नहीं भी हो Okay. सकती। Suppose you are alone by yourself in a room जैसे मान लीजिए आप अकेले किसी कमरे में हैं and you want to receive the baptism of the Holy Spirit. और आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिले, You can just pray by yourself and the Holy Spirit, you will be baptized in the Holy Spirit. तो आप खुद से प्रार्थना कर सकते हैं और मांग सकते हैं कि मुझे बपतिस्मा दे और आपको बपतिस्मा प्राप्त हो सकता है। And that is how it happened for me. और मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ। Nobody laid hands. At that time, I received the baptism. और जब मुझे वो बपतिस्मा मिला तो किसी ने मेरे ऊपर हाथ तो नहीं रखा। I was actually going on a bike. मैं एक बाइक पे जा रहा था I was going in traffic, Bangalore traffic, और बेंगलुरु के ट्रैफिक से होकर मैं गुजर रहा था and I was baptized in the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा भर गया And I started praying in tongues. और फिर मैं अन्य भाषा में बात करना शुरू कर दिया। So it was not in church. तो ये कलीसिया में नहीं था It was not during time of worship. और ये आराधना के समय भी नहीं था It was in the most unspiritual of places, और बहुत अन आत्मिक जगह पे मुझे ऐसा हुआ। on the road, ये सड़क पे हुआ, in the traffic, वो ट्रैफिक के बीच में। right? So the Holy Spirit can fill you anywhere. तो पवित्र आत्मा आपको कहीं भी कभी भी भर सकते हैं। And it doesn't have to mean that people have to lay hands on you. तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को आपको हाथ रखना और अनिवार्य है आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने के लिए। Okay. Then we might have some other question like this. तो फिर इस प्रकार के कुछ अन्य भी प्रश्न हमारे पास हो सकते हैं। Okay. First, do I have to be baptized in water? And only then will I be baptized in the Holy Spirit. तो क्या पहले मुझे पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले? Okay. So what is your answer? तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? Huh? Acha. So water baptism has to happen, and only then baptism of the Holy Spirit. जरूरी नहीं है। Huh? पहले भी? पहले भी पवित्र आत्मा काम करता है। यह अनिवार्य जरूरी नहीं है। Okay. See, water baptism is something that the Lord wants all the believers to obey, to that instruction. प्रभु ने यह निर्देश दिया कि सारे विश्वासी जल की बपतिस्मा प्राप्त करें, Right? It's something that is scriptural. जो वचन में लिखा हुआ है। But when you look at the Bible लेकिन जब आप बाइबल को देखते हैं and all those incidents that we read yesterday, और ये सारी घटनाओं को जो हम कल पढ़े, we see some instances where people were not baptized in water. तो हम कुछ ऐसे घटनाओं को भी देखते हैं जहाँ पे लोगों को जल का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा प्राप्त नहीं हुआ था। When did that happen? वो कब हुआ था? It was in the house of Cornelius. कुरनेलियुस के घर में हुआ था। Okay, they were all non-Jewish people, Gentiles who had gathered there. और अन्य जाति जो यहूदी नहीं थे वे वहां पे इकट्ठे हुए थे। When Peter preached, they heard the gospel, they believed the gospel. और जब पतरस ने प्रचार किया, वे सुसमाचार को सुने, उनको ग्रहण किया। And as they believed the gospel, they were filled with the Holy Spirit. और जैसा कि वह सुसमाचार पर विश्वास किए, वे पवित्र आत्मा में भर गए। And then Peter and all the other Jews, they saw that. और पतरस और जो दूसरे यहूदी थे, उन्होंने उसे देखा। And then Peter says, why should these people not be baptized in water also? तो पतरस ने कहा कि क्यों ना ये लोग भी जल का बपतिस्मा प्राप्त करें। So after they were baptized in the Holy Spirit, और जब वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर चुके थे, तब they were baptized in water. तब जाके उन्होंने जल का या पानी का बपतिस्मा लिया। Okay, so we see that in Acts chapter 10 and verse 47. उस घटना को हम प्रेरितों के काम अध्याय 10 का 47 में पाते हैं। Okay, if you turn in your Bibles to Acts chapter 10 verses 47 and 48. और अपने बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसका 47 से लेके 48 वचन तक आप So देखिए। you can read it over there. It is mentioned there. आप वहां पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है। And Peter says, he commanded them to be baptized in water
because they had already been baptized in the Holy Spirit. वहां पे लिखा गया कि पतरस ने उनको आज्ञा दिया कि वह जल का बपतिस्मा प्राप्त करें, क्योंकि वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर चुके थे। So we see that there is no particular order. तो हम ये देख रहे हैं कि कोई एक विशेष क्रम नहीं है यहाँ पर। Okay, so that is something that we need to understand. तो आप इसको कुछ ऐसी बात है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। Okay, then another question. और दूसरा प्रश्न, Okay, is everybody listening? क्या कोई सब सुन रहे हैं? Okay, another question. When we pray in tongues, do we always have to understand what is being prayed? और जब हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, तो क्या हमको हमेशा समझना जरूरी है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? Because in the Acts chapter 2, we read that जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, they started speaking in tongues. They were actually magnifying God. और वे अन्य भाषा में बात करने लगे और परमेश्वर को वो ऊंचा उठाने लगे। And there were other people who were there who recognized these languages. और वहां पे कुछ अन्य लोग भी थे जो इन बातों को Right? इस They said, भाषा "Hey, को this is पहचान my पाए। this is my mother tongue. I know this language." तो वे कहते थे कि अरे ये तो मेरी मातृभाषा है, मैं इस भाषा को जानता हूँ। And how can this be? These people don't know it, but then they are still speaking it. और ये कैसे हो सकता है? ये लोग तो जानते नहीं है और कैसे इस भाषा में बात कर सकते हैं? Right? So the question is this: does it always have to be a language which someone should understand? तो प्रश्न ये है कि क्या वह ऐसी भाषा होनी जरूरी है जो सब लोग समझ पाते हैं या कोई समझ पाता है? What do you think? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? है या नहीं? हाँ या ना? Yes or no? It's Huh? not required. It's not required. Not required. Why? If you say it is required, you should say why. तो आप कह रहे हैं कि अगर जरूरत है तो क्यों, अगर नहीं जरूरत है तो क्यों? Okay, yes, sister. माइक ले लीजिए। Okay, so what sister is saying is that it says in the word of God that we can, though we speak in tongues of angels and of men. तो बहन कह रही थी कि हम दूतों Okay, so which means it could be a earthly language or it could be a heavenly language. और इसका मतलब है कि यह कोई पृथ्वी है या स्वर्ग की भाषा हो सकती है। So where do we see that? तो इसको हम कहाँ देखते हैं? 1 Corinthians 13 and verse 1. पहला कोरिन्थियों 13 का वचन 1। Right? 1 Corinthians 13 and verse 1, where Paul says, "Though I speak with tongues of men and of angels, but if I don't have love, then it's just noise." और प्रेरितों की पहला कोरिन्थियों 13 का 1 भी कहता है कि अगर मैं मनुष्यों की भाषा, दूतों की भाषा बोलूं और प्रेम न रखूं तो यह एक शोर है। Okay, so which means he's referring to, in that context, he's talking about praying in tongues. और वह उस संदर्भ में बात कर रहा है कि पवित्र अन्य भाषा में बात करने के बारे में कह रहा है। He's teaching the church वह कलीसिया को सिखा रहा है, about the gifts of the Spirit. वह पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सिखा रहा है। And as he's talking about the gifts of the Spirit, he's mentioning this. और जैसा कि वह आत्मा के बारे में, आत्मा के वरदानों के बारे में बात कर रहा है, वह इस बारे में बात कर रहा है। Okay, let's look at one more verse. और एक वचन देखेंगे, 1 Corinthians 14 पहला कोरिन्थियों 14 and verse 14. उसका 14 वचन। Okay, 1 Corinthians 14 verse 14. 14 पहला कोरिन्थियों 14 का 14। Brother, वहाँ पे नहीं है, no problem. 1 Corinthians 14 and verse 14. पहला कोरिन्थियों 14 का 14 वचन। Okay, what does it say? Can anyone read, please? कोई पढ़ सकता है क्या इसे? यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। Okay. So he says, when I pray in the Spirit, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Meaning, hey, I'm not able to understand what I'm praying. तो यह कह रहा है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना तो करती है पर मेरी बुद्धि काम नहीं करती। Okay. So what is he saying? He's saying that I'm praying, but I'm not able to understand. तो ये कह रहा है कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन मैं ही समझ नहीं पा रहा हूं। Should I continue to pray or should I stop praying? तो क्या मुझे लगातार प्रार्थना करना चाहिए या रोक देना चाहिए? So Paul himself says that whatever he was praying in the Spirit, he does not understand. तो पौलुस कह रहा है कि जो भी वो आत्मा में प्रार्थना कर रहा था उसको उसकी समझ नहीं थी। Right? In Acts chapter 2,
और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में it was earthly languages. वह पृथ्वी की भाषा थी, But we see later that it could be heavenly language also. और बाद में हम देखते हैं कि यह स्वर्ग की भाषा भी हो सकती थी। Okay, so which means that nobody around would understand what is being prayed. तो इसका मतलब होता है कि जो अगल बगल में है वो अगर सुनेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या प्रार्थना हो रही है। But these are still words which are given by the Holy Spirit. तो यह अभी भी वो शब्द है जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए हैं। Okay, so don't stop praying in tongues. तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद ना कीजिए। Right? You may not understand, हो सकता है कि आप उसे नहीं समझें, but you continue to pray in faith. तो आप विश्वास में लगातार इसको प्रार्थना करते रहिए, Right? Because God understands. क्योंकि परमेश्वर इसे समझ रहे हैं। And it is the Holy Spirit who's giving you the words to pray these words. और यह जो पवित्र आत्मा है जो आपको यह शब्द दे रहे हैं कि आप अन्य भाषा में से बात करें। And there is also another gift called the gift of interpretation of tongues. और एक और वरदान है जिसको कहते हैं जो अन्य भाषा उसको अनुवाद करने का वरदान। So you may not understand what you are praying out loud, आप जोर से जो प्रार्थना कर सकते हैं, हो सकता है उसको आप ना समझ रहे हो, but the Holy Spirit will give you the meaning or give you understanding of what you are praying. और पवित्र आत्मा आपको वह मतलब समझाएगा, उसका अर्थ समझाएगा कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। Or maybe I'm praying and then Holy Spirit gives, someone who's next to you the understanding. तो जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा जो मेरे बगल में खड़ा है उसको वह समझ दे सकता है, उसको समझ दे सकता है उस भाषा के बारे में। Okay, so which means that yes, it is quite natural that you may not understand when you pray in tongues. तो उत्तर यह है कि हाँ, यह बहुत स्वाभाविक है कि आप अन्य भाषाओं का जो भाषा होता है उसको ना समझ Right? पाएं, Paul himself had that same situation. क्योंकि पौलुस को भी इसी प्रकार की अवस्था में जाना पड़ा। Right? He did not understand. हाँ, उसने भी नहीं समझा। But he says, I pray in tongues more than you all. वो कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। Means he prayed a lot in tongues. इसका मतलब होता है कि उसने अन्य भाषा में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रार्थना करता था। So which means that there are different kinds of tongues. इसका मतलब होता है कि अन्य अन्य प्रकार के भाषाएं होती हैं, And we are going to study them. और उसको भी हम अभी पढ़ेंगे। Okay? We're going to study what happens when we pray in tongues. तो हम लोग यह पढ़ेंगे कि क्या होता है जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं। Okay. Then we come to another question. और फिर एक दूसरे प्रश्न की ओर हम आते हैं, Did the Lord Jesus pray in tongues? क्या प्रभु यीशु ने अन्य भाषा में प्रार्थना किया? Right? Because he's the Lord. क्योंकि वो प्रभु है, We have to do whatever he did. वो जो किए वो हमें करना जरूरी है। So did he speak in tongues? Did he pray in tongues? क्या उन्होंने कोई अन्य भाषा में प्रार्थना किया? Okay. The answer is that we don't know. तो आंसर यह है, उत्तर यह है कि हम नहीं जानते। So the Bible does not say that he prayed in tongues. बाइबल यह नहीं कहती है कि उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया, The Bible also does not say that he did not pray in tongues. और बाइबल ये भी नहीं बताती है कि वे अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की। Right? So scripture is actually silent about that whole thing of Jesus praying in tongues. जो धर्मशास्त्र है वह थोड़ा शांत है इस विषय को लेकर कि उन्होंने प्रार्थना किया था अन्य भाषा में या नहीं। But we know that he displayed or manifested the gifts of the Spirit. तो हम ये जानते हैं कि जो जितने वरदान पवित्र आत्मा के थे उसको उन्होंने दिखाया, उनके साथ वो काम किया। Tongues is one of the gifts of the Spirit. और जो अन्य भाषा है वह वरदानों का एक भाग है। Interpretation of tongues is one of the gifts of the Spirit. अन्य भाषा का अनुवाद वो और उसका समझना एक दूसरा भाग है। But we know that the Lord Jesus manifested the other gifts of the Spirit. और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आत्मा के वरदान है दूसरे उसको भी दिखाया। Okay, so the Bible is actually silent whether he prayed or he did not pray. तो बाइबल एक्चुअली वास्तव में यह वो शांत है इस बारे में कि उन्होंने प्रार्थना किया या नहीं किया। Okay, then some people might have this question. तो कुछ लोगों को यह प्रश्न हो सकता है, If I pray in tongues, does Satan understand? Does the devil understand it? तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या शैतान इसे समझ पाता है? Okay. The devil cannot understand. Okay. So the thing is, see, if it is that when it comes to tongues, तो देखिए जब अन्य भाषा की बात होती है
It says that it's the tongues of men or tongues of angels. तो वो कहते हैं कि वह मनुष्य की भाषा है या दूत की सरदूत की भाषा है। And we know that Satan and the powers of darkness are fallen angels, तो हम देखते हैं कि शैतान और जो अंधकार के दूत हैं वे सब पतित दूत हैं। right? So we are speaking in tongues of angels, तो अगर हम स्वर्गदूतों की भाषा बोलते हैं and they are fallen angels. और लेकिन अगर वो पतित दूत है, Maybe they understand, maybe they don't. हो सकता है वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। But it does not matter. तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। Why does it not matter? इसका कोई मतलब क्यों नहीं है? Because God has given us authority over the powers of darkness. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है उस अंधकार की शक्ति के ऊपर। Right? Whether they know or not, it does not matter. अब वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। Because God has already given us His righteousness क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से ही अपनी धार्मिकता दे दी है and has given us the authority because of who we are in Christ Jesus. और उन्होंने हमें अधिकार दिया है यह जानने के लिए कि हम मसीह में कौन हैं। Right? Authority to cast out demons, अधिकार हुआ जो दुष्ट आत्मा को निकालता है authority to bring healing and change to the work of demons. और जो दुष्ट आत्मा के कार्य है उसमें बदलाव या चंगाई को लेकर आने की अधिकार। Right? So we don't have to worry about that. तो इसके लिए हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। Okay. So let's look at some of the instructions to receive prayer, to receive the baptism of the Holy Spirit. तो आइए अब हम ध्यान से देखेंगे जो निर्देश है कि कैसे हम पवित्र आत्मा के अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त कर सके। Okay, some of these things are very practical things. तो ये जो कुछ बातें हैं ये काफी स्वाभाविक बातें हैं। Okay, first thing to know and to understand is that Jesus is the one who baptizes तो us. सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ही है जो हमें बपतिस्मा देते हैं। Okay, Matthew chapter 3 is very clear, मत्ती अध्याय 3 इसमें बात साफ से लिखा गया है। where John the Baptist says that it's the Lord Jesus who baptizes with Holy Spirit and fire. जब यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वह यीशु मसीह जो है वही हमें जल और आग से बपतिस्मा देता है। Okay, he's the one who baptizes. यही है वो हमें जो बपतिस्मा देते हैं No other human being can baptize. और कोई भी अन्य पुरुष नहीं है जो बपतिस्मा दे सकते हैं। Okay. Second one, दूसरी बात, if you are a believer, अगर आप विश्वासी हैं, you are a believer in Jesus, अगर आप यीशु मसीह में विश्वासी हैं, you qualify to receive the baptism of the Holy Spirit. तो आप उत्तीर्ण हो जाते हैं पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को प्राप्त Okay. करने के लिए। Everyone? सब लोग No समझ doubts गए? about that. इसके बारे में कोई संदेह नहीं You होना just चाहिए। have to be a believer. आपको सिर्फ एक विश्वासी हो। And maybe you're teaching someone, maybe you're praying for someone. That person just has to be a believer. तो हो सकता है कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, वो व्यक्ति एक विश्वासी होना चाहिए। In Mark chapter 16, मरकस का 16 अध्याय में verses 17 and 18, 17 से 18 तक the Lord Jesus says this. तो यीशु मसीह इस प्रकार कहते He हैं says that these signs will follow those who believe. और ये सारे जो चिन्ह है उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। What are those signs? तो वह जो चिन्ह है वो They क्या will है? cast out demons. वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे And he also says they will speak with new tongues. और वे अन्य भाषा भी बोलेंगे, ऐसा कहता है। They will cast out demons. वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे They will speak with new tongues. और वे नई भाषाओं को बोलेंगे। Who are these people? तो ये लोग कौन हैं? They who believe in Jesus. जो यीशु मसीह पर विश्वास करते So if you are a believer, हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं, you qualify. आपको वह उत्तीर्णता मिल गई है। Like you qualify to be baptized in the Spirit, आप उत्तीर्ण हो जाता है कि आपको आत्मा का वरदान मिले and you qualify to pray in other tongues. और ये आप इसका भी आप उत्तीर्ण हो जाते हैं कि आपको अन्य भाषा का वरदान प्राप्त हो। Right? The third thing is that it requires faith. और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर विश्वास की जरूरत है। Right? It is a work of the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा का कार्य है, It is not our work, ये हमारा काम नहीं है, but it requires faith. लेकिन इसमें विश्वास की आवश्यकता है। Faith in Jesus. प्रभु यीशु पर विश्वास, Faith in His word. उसके वचन पे विश्वास Every work of the Spirit is received through faith. और जितने भी काम यीशु मसीह के जो हम प्राप्त करते हैं वो विश्वास के द्वारा ही करते हैं। Amen. आमीन। Fourth one, चौथी बात, reject all fear. जितने भी भय है उसको आप निकाल दीजिए। What fear is there? यहाँ कोई यह डर क्या है? The most common fear is this. और सबसे विशेष प्रकार समान प्रकार के If I ask God for the Holy Spirit to be Holy Spirit baptism, जो भय है कि अगर मैं परमेश्वर से पूछूंगा पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, what if some other spirit enters me? तो क्या होगा अगर कोई दूसरी आत्मा मेरे अंदर आ जाती है? Right? People have that fear. लोगों को उसके प्रकार का भय होता What है। if some other spirit comes? क्या होगा अगर कोई दूसरा आत्मा आ जाता है? Reject all that kind of fear. तो जितने भी जो भय है इन सबको निकाल दीजिए। Right? Who are we praying to? हम किसको प्रार्थना कर रहे We हैं? are praying to the Lord of heaven and earth. हम प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है उसको Right. उसको प्रार्थना कर रहे हैं And He is our heavenly Father. और वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं।
And the Lord Jesus, when he was teaching about the Holy Spirit, और जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा दे रहे थे in the book of Luke, chapter 11, और लूका के 11 अध्याय में he says this: उन्होंने ऐसा कहा, if a son asks a father for bread, अगर एक बेटा अपने पिता से रोटी मांगे will the father give a stone? तो क्या पिता उसको पत्थर देगा? No. नहीं। I know, some of us are parents here. हम जानते हैं कि हम से कई यहाँ पे माता पिता हैं। If your child asks for bread, will you give a stone? तो अगर आपका बेटा रोटी मांगेगा तो क्या आप पत्थर देंगे? You will not do that. आप ऐसा नहीं करेंगे। If a child asks for a bread, you will not even give stale bread. You will give fresh bread. और अगर आपका बेटा रोटी मांगेगा तो आप सड़ा हुआ रोटी भी नहीं देंगे, आप ताजा रोटी देंगे। Right? So the Lord is asking that question. तो प्रभु इस प्रकार के प्रश्न को कर रहे हैं। Hey, will you give a stone? तो क्या तुम रोटी दो पत्थर दोगे? Right? If a child asks for a fish, अगर आपका बच्चा मछली मांगता है will you give a snake? तो क्या आप सांप देंगे? If a child asks for an egg, अगर कोई अंडा मांगता आपका बच्चा, these are all non-vegetarian dishes. ये सारे मांसाहारी भोजन है। If you ask for an egg, अगर आप अंडा मांगेंगे will you give a scorpion? तो क्या आप बिच्छू देंगे? No, you will not. नहीं, आप नहीं। You are earthly. जब तुम पृथ्वी के होकर, You have some faults, some weaknesses, जब आपके अंदर कुछ गलती है, कुछ कमजोरियां है, but still you will not do this as an earthly father. तो आप एक पृथ्वी के पिता होने के कारण ये सारे काम नहीं करोगे। So the Lord is asking that question. तो प्रभु ये प्रश्न पूछते हैं, Hey, if you are an earthly father and you won't do this, अगर आप एक सांसारिक पिता हैं और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, how can you blame the heavenly father to do this? तो कैसे आप दोष लगा सकते हैं स्वर्गीय पिता को इसकी ऐसा ना करेगा वो? You are asking the heavenly father आप स्वर्गीय पिता को मांग रहे हैं, and you're saying, fill me with the Holy Spirit. आप कहेंगे पिता मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, Will he allow you to be filled with the evil spirit? तो क्या वो ऐसी अनुमति देगा कि आप दुष्ट आत्मा से भर जाए? Right? नहीं। So we can remove all those fears. तो जितने भी ऐसे भय हैं उन सब को निकाल दीजिए। Another thing that we need to understand. और दूसरी बात जो हमें समझने की आवश्यकता है, We don't have to beg God or convince God to do this for us. हमको परमेश्वर से गिड़गिड़ाने की या उसको मनाने की आवश्यकता नहीं है कि वो ऐसा हमारे साथ करे। Right? You don't have to beg him. उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। Saying, Lord, fill me, Lord, please, Lord, I beg you. You don't have to do that. तो आप ऐसा नहीं कहें कि परमेश्वर मुझे भर दे, मैं मांगता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे भर दे। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। Of course, it is good that we have that hunger and expectation and ask him to fill us. हाँ, ये बात अच्छी है कि हमारे पास वो भूख होनी चाहिए कि हम उससे मांगे कि वो हमें भर दे। And you're saying, Lord, I really want you to fill me. और आप कहें कि हाँ परमेश्वर, मैं सच में चाहता हूँ कि आप मुझे भर दें। But you don't have to convince him. तो उसको मनाने की आवश्यकता नहीं है। Right? Sometimes we say, God, I did all this, please give me. हम कभी कहते हैं कि परमेश्वर हमने तो ये सारे काम किए, मुझे आप भर दे। And I need all this, I need to do this, so you fill me. तो मुझे ये सारे काम करने हैं और ये सारी बातों को करना है, इसलिए मुझे भर दे। Right? We don't need to convince God. परमेश्वर को मनाने की आवश्यकता नहीं है। He knows, he is an all-knowing God. वह सब कुछ जानने वाला, वो जानता है वैसा परमेश्वर। And in fact, he wants to fill us. लेकिन बात यह है कि वह खुद हमें भरना चाहता है। Right? He's inviting us as believers to come and be filled with the Spirit. और वह एक विश्वासी के रूप में हम लोगों को निमंत्रण दे रहा है कि हाँ आओ और भर जाओ। Okay? So we don't have to convince him, we don't have to beg him. तो उसको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, उसको मनाने की जरूरत नहीं है। We just have to believe and we'll receive. और हमको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है और ग्रहण करने की जरूरत है। Okay? Now, many of us have a certain understanding of what this praying in tongues is like. और हम में से कईयों के पास एक ऐसी समझ है कि कैसा लगता है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। Okay? We think, okay, I'll keep my mouth closed. वो कहते हैं कि हाँ मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, The Holy Spirit will somehow make me speak. तो पवित्र आत्मा कैसे भी करके मुझे बोलने देगा, He'll force me to speak. वो मुझे बलपूर्वक बोलने के लिए करेगा। I just have to be quiet and keep my mouth shut. मुझे वो बंद रखना है, अपने आप को शांत रखना है। Right? But that is not what it is. लेकिन वह ऐसी भी नहीं है। We see in Acts chapter 2, प्रेरितों के काम अध्याय में 2 में देखते हैं, the Holy Spirit gave them the utterance or the words और पवित्र आत्मा ने उस बड़बड़ाहट या शब्द को दिया
which they spoke out. They are the ones who spoke. तो वे बोले, वे थे जो बात किए। Okay, the Holy Spirit gives the words, पवित्र आत्मा शब्द देते हैं, but we have to speak. लेकिन हमें बोलना है। Right? It is like a cooperation with the Holy Spirit. इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के साथ हमारा सहयोग, Right? He fills us वो हमें भर देते हैं, and He gives us the words. वो हमें शब्द देते हैं। Now, so how does it feel? तो ये कैसे प्रतीत होता है? It feels as if, I need to speak this. वैसा अनुभव होता है कि मुझे जरूर इसको बोलना, I have these words forming in me, और यह शब्द मेरे अंदर बन रहे हैं, but I have to speak. लेकिन मुझे इसको बोल के बाहर I निकालना। have to choose or decide to speak, हमको यह चुनाव करना है या निर्णय लेना है कि हम उसको बोले। which means इसका अर्थ है, I can choose not to speak also. तो हम, इसका मतलब है कि हम इसका भी चुनाव कर सकते हैं कि उसे हम ना भी बोले, Right? Because of fear, because of wrong understanding, और गलत समझ के कारण या भय के कारण I may not speak out the words also. हम उस शब्द को हो सकता है बोल भी ना सके। Right? So we need to and decide to speak the words that He's putting in our hearts. और हमको उसका चुनाव करना है, निर्णय लेना है कि जो शब्द वो हमारे हृदय में डाल रहा है उसको हम बोल के बाहर निकालें, Even though we don't understand it. अगर उसको हम नहीं समझ तो भी। And we don't understand it because these are sounds. हम इसे नहीं समझ पाते कि यह कुछ आवाजें होती हैं। Like a word is a sound. एक शब्द एक आवाज है। And many times when we think of words, we think of something which has meaning. और जब भी हम कुछ आवाज या शब्द को सुनते हैं तो उसको हम ऐसा हमको लगता है कि उसका कुछ शब्द का अर्थ होना चाहिए। Right? Suppose I say a black dog, it has a meaning. अगर हम कहें कि एक ब्लैक डॉग, काला कुत्ता, इसका एक शब्द होता है, Right? इसका अर्थ होता है। So you can imagine the dog. आप एक कुत्ते के बारे में कल्पना कर सकते हैं, You know what a dog is. आप जानते हैं कि कुत्ता कैसा होता है, So you understand तो आप समझ पाते हैं, and you speak it out. तो आप उसको बाहर बोल के बाहर निकालते But हैं। what if it is a sound and it does not make sense? तो क्या अगर यह एक ऐसा शब्द है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, It does not mean anything to you. उसका आपको कुछ मतलब नहीं पता चल रहा है, Will you still speak it out? लेकिन फिर भी आप उसको बोल के बाहर करते हैं। That is why it requires faith. इसीलिए विश्वास की आवश्यकता है। We trust in Him. हम उन पर भरोसा करते हैं। Lord, I'm praying to you आप कहते हैं परमेश्वर, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ and you are giving me these words. और आप मुझे ये शब्दों को दे रहे हैं, And I just have this sense that these words are forming in my heart. और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह शब्द मेरे हृदय में बन रहे हैं, But I don't understand the meaning of it. लेकिन मैं इसका किसी का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। But by faith, I will speak it out. लेकिन विश्वास से मैं इन शब्दों को बोल के बाहर निकालूंगा। That's how it works. और इस प्रकार ये काम करता है, Right? Because Acts chapter 2, it's very clear. क्योंकि पवित्र के काम अध्याय 2 में यह They were काफी filled with- स्पष्ट है। They were filled with the Spirit वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे and they spoke in other languages और वे अन्य भाषा में बोले, as the Spirit gave them utterance. और जैसे पवित्र आत्मा ने वह बड़बड़ाहट दी उनको कहने के लिए। Amen? Right? Okay. Another thing to keep in mind. और दूसरी बात जो मन में रखनी है, At one point, we can speak only one language. एक समय में हम सिर्फ एक ही भाषा बोल सकते Yes or no? हैं, हाँ या ना? I can speak in English now, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ अभी, then I can stop और मैं रुक सकता हूँ, and I can speak in Hindi maybe. तो हो सकता है कि मैं हिंदी में ही बात करूँ, But I can only speak one language at one time. लेकिन हम एक ही भाषा एक बार में बात कर सकते हैं। Mix. Right. But when I speak, I'm speaking Hindi, but I stop and I speak in English, right? लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, फिर रुकता हूँ, फिर हिंदी में बात करता हूँ। Hindi में बात करता हूँ और English में भी. Now I can speak in English also. But see, I have to stop and I have to switch over. जी, हिंदी में बात किए, फिर रुकना पड़ा, then I will speak in English, फिर रुकना पड़ा, मैं हिंदी में बात करता हूँ, फिर हिंदी, ऐसी बात है। And in one sentence, I could have a mix of both English and Hindi words. और एक वाक्य में मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण हो सकता है, But at one point, I can speak only one language. लेकिन एक समय में हम सिर्फ एक ही भाषा बोल सकते हैं। See, that is also something that we need to understand. तो ये भी हमें समझने की बहुत जरूरत है। Many times we are praying to the Lord
जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर we से, are asking the Lord to fill us, हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे भर दे, and He fills us with the Holy Spirit. वो हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं। And we're just thanking Him, and we're saying, "Praise the Lord, Hallelujah," etc. हम धन्यवाद करते कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया आदि आदि, Yeah, we just continue to do that, और हम इसको लगातार करते रहते हैं। and we somehow think that okay, even as I do that, I will continue to speak in tongues, और हम लोग सोचते हैं कि अगर हम ऐसा भी करेंगे तो हम अन्य भाषा बोलना शुरू करेंगे, right? But we should stop speaking in the known language and speak out the words which the Holy Spirit is giving us. लेकिन हमको जो भाषा हम जानते हैं उसमें प्रार्थना करना बंद करना पड़ेगा, और जो पवित्र आत्मा भाषा दे रहा है उसमें बोलना आरंभ करना पड़ेगा। Right? So that is how simple it is. यह इतना साधारण है, इतना इतना सरल है। Okay, so why don't we? आई थिंक Okay, so we'll take a break right now, और अभी हम एक अंतराल लेंगे छोटा सा, and we'll come back at 10:35. Oh, we have 5 more minutes. Oh, okay, 5 more minutes. So let's pray and then we'll close. 5 मिनट है तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर हम जाएंगे। Okay, right where you are seated. और जहाँ पर हैं वहाँ पे ही आप, If you have not yet been baptized in the Holy Spirit, अगर अभी आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त नहीं किए हैं तो, you're saying, I don't know about this baptism of the Holy और Spirit. आप कहते हैं कि मैं इस पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, I've not yet started praying in tongues. और मैं अभी पवित्र आत्मा में अन्य भाषा प्रार्थना करना शुरू नहीं किया। Okay, if you're such a person, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, you pray this prayer. हाँ, तो आप इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। You pray to the Lord Jesus प्रभु यीशु से यह प्रार्थना कीजिए and pray in faith और विश्वास से प्रार्थना and say, कीजिए। Lord Jesus, आप कहिए, प्रभु यीशु, fill me with your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा से मुझे भर I दीजिए। am a believer. मैं एक विश्वासी I हूँ, believe in you, Lord. मैं आप पर विश्वास And करता हूँ, according to your word, I'm praying to you. और आपके वचन के अनुसार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Fill me with your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा से मुझे भर And दीजिए, I believe that I have the capacity to pray in tongues. और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पास वो क्षमता है कि मैं अन्य भाषा में बात करूं। So release the gift of praying in tongues. और प्रभु जी वरदान को मेरे अंदर से निकालिए पिता And परमेश्वर, release all the gifts of the Holy और Spirit. जितने वरदान पवित्र आत्मा के मेरे अंदर से होकर निकलने दीजिए। I thank you, Lord. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, You pray that prayer. और उस प्रार्थना को आप कीजिए। And if you're already someone who's already praying in tongues, और अगर आपको ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले से ही अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, you begin to pray in tongues. और फिर आप भी शुरू कीजिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना, Pray softly, just between yourself and the Lord. और एकदम आराम से प्रार्थना कीजिए आपके और परमेश्वर के Right? बीच में। Those of you who already pray in tongues, you begin to pray in tongues. और जो पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। And those of you who are yet to pray in tongues, just thank the Lord. Pray that prayer that I prayed, and you thank the Lord. और जो अभी भी अन्य भाषा में नहीं बोल पा रहे हैं, आप उस प्रार्थना को कीजिए और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। And say, Lord, I receive the baptism. और आप कहें कि परमेश्वर, मैं इस बपतिस्मा को ग्रहण करता हूँ। I'm ready, Lord, so fill me with your spirit. मैं तैयार हूँ परमेश्वर, इसीलिए अपनी आत्मा से मुझे भर दीजिए। Let's just pray for some time. आइए प्रार्थना करें कुछ देर के। You don't have to beg the Lord. आप परमेश्वर से गिड़गिड़ाए नहीं, You don't have to convince the Lord. उसको आप मनाने की जरूरत नहीं है। You are speaking and praying to the Heavenly Father आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने स्वर्गीय पिता से, who gives good gifts. जो भले वरदानों को देता है। He knows what is best for us. वो जानता है कि हमारे लिए उत्तम क्या है, And it is His desire to fill you and to release those gifts in you. और वह इसकी इच्छा है कि वो आपको भरे और ये सारे वरदानों को आपको दे दे। So just begin to pray. इसलिए प्रार्थना करते रहिए, लगातार प्रार्थना करिए। I want everybody to pray. मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। Pray in faith. आप विश्वास से प्रार्थना करें, Pray knowing that your prayers are being heard. और ये जान के प्रार्थना कीजिए कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। धन्यवाद। Thank you, Father God. And if you've not yet started praying in tongues, अगर आपने अन्य भाषा प्रार्थना करना अभी नहीं शुरू किया है, the Holy Spirit is putting in your spirit, in your heart, certain sounds, certain words. और पवित्र आत्मा आपके हृदय में कुछ शब्द को डाल रहा है, And you begin to speak out those words. और आप शुरुआत कीजिए, शुरू कीजिए उन शब्दों को बोलना, Right? You begin to make those sounds. और वह शब्दों को आप बनाना शुरू कीजिए, Just do that in faith. और उसको आप विश्वास से कीजिए। You may not understand it.
आप उसको समझ नहीं हो सकते, हो सकता but, समझ नहीं पा but रहे हैं, speak it out, pray it out in faith. और उसको बोलिए, उसको प्रार्थना कीजिए विश्वास के You know, द्वारा। it could be just one word, हो सकता है कि सिर्फ एक ही शब्द मिले it आपको, could be just half a word, हो सकता है कि वो आधा शब्द मिले आपको, but you pray it in faith. लेकिन आप उसको विश्वास से प्रार्थना कीजिए। Just come on, let's begin to pray. Stir आइए, yourself up. अपने आप में हलचल पैदा कीजिए और प्रार्थना शुरू कीजिए, Just pray strong, और intense. और एकदम गड़ाई से प्रार्थना कीजिए, आप मजबूती से प्रार्थना कीजिए। And whatever word, just between you and the Lord. अब यह आपके और परमेश्वर के बीच में है। Let's continue to pray. प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। Thank you, Father God. We thank you, Lord. Thank you. We bless your name, God. आपके नाम को धन्य We कहते bless हैं। your name, Lord, right now. प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं। We thank you that you're a good God, you're a faithful God. हम धन्यवाद करते हैं कि आप भले परमेश्वर और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। And we thank you for filling us, Lord. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें भर दिया We thank you for releasing, oh God, those words inside of us. और हमारे अंदर उस शब्दों को छोड़ने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। We pray that we will continue to speak out in faith. और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के लगातार हम विश्वास में बोलते रहेंगे पिता। In Jesus' matchless name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Okay, we'll take a break right now अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे and we'll come back at 10:35. और हम 10:35 में वापस आएंगे।